Hello everyone and welcome back again to our official YouTube channel Accounts Insight. So far we have covered most of the theory part and today most probably the last topic will be from the theory part, and then we will start the practical part as well, the journal entries. If anything still left, then I will look into and will cover in the next video if required. Otherwise, we will start journal entries. And before journal entries, I would tell you the terms in accounting, like what are assets, liabilities, what the meaning of voucher, what is voucher, so what is internal users. So all these things will be covered when we start the practical portion, and it will be most probably in the next video, right? So today this is the last video from the theory part, assuming the last video. If there is anything left, then I will look into, and then we will cover in the next part. And if you guys think so that this topic should be discussed, if anything left, and it should be discussed, then you can comment, then I will discuss in the next video. So let's move into the video straight away without wasting any time. So limitations of accounting, today's topic is. Limitation of accounting. So till now I have told you most probably everything about accounting, its features, its objective, its characteristics, uh, all about the intro part, why we needed, who needed it. So but after all this, still there are some limitations as well, right? So today we will discuss those. And when I ask limitation, that means accounting has some limited drawbacks, you can say. It's not but most probably it's a profitable, but there are some limited limitations as well. So first is historical cost. First is historical cost. So historical cost means, as I told you, balance sheet pay, all assets and liabilities are recorded at their purchase price. Correct? At their purchase price. So changes in the market value are not reflected on the balance sheet, which जो कि एग्जैक्ट कॉस्ट, जो कि करंट मार्केट वैल्यू को डिफाइन नहीं करती, which is a drawback in the accounting. So the first is historical cost. Accounting records assets and liabilities at their original purchase price. At their original purchase price. Correct? So the first is historical cost. That means all assets and liabilities on the balance sheet. What is balance sheet? This is a financial reports
what financial reports में I told you to mainly remember two reports, profit and loss account and balance sheet, right? For now, and when you keep continue to the to plus keep continue the to plus two and become level, you will get to know about more reports, correct? So this is a limitation in accounting. अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रहा हूँ 4 लाख की, तो मुझे वो 4 लाख में ही मैं बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आज मैंने 4 लाख की खरीदी, साल बाद चाहे वो 5 की हो जाए या 3 की हो जाए, डज नॉट मैटर। अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर ओरिजिनल प्राइस। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। The second one is non-monetary factors. As the name suggests कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, बट कुछ ट्रांजैक्शंस या हैपनिंग्स बिजनेस में ऐसी होती हैं, चाहे वो मॉनिटरी ना भी हो, बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और मटेरियल होती हैं, जो वेरी मटेरियल हो, बट उनको रिकॉर्ड नहीं करता। लाइक क्वालिटी फैक्टर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ रिकॉर्ड करता है मॉनिटरी फैक्टर्स को। क्वालिटी फैक्टर मींस मेरे पास 10 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि बहुत हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्कर्स हैं, एंड दे आर लाइक कि जिनसे मेरा बिजनेस स्टैंड कर रहा है, राइट? तो उन फैक्टर्स को अकाउंटिंग कहीं भी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, दैट इज द ड्रॉबैक। क्वालिटेटिव इफेक्ट लाइक एम्प्लॉय मोरल, ब्रांड रेपुटेशन कस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड। अब अगर आप किसी की बैलेंस शीट देखोगे, मान लो आप किसी की भी बैलेंस शीट देख रहे हो, आपको मान लो आपके शहर में कोई ऐसी शॉप है या ऐसा कोई स्टोर है या ऐसा कोई मॉल है या कुछ भी समथिंग लाइक दैट जो कि बहुत फेमस है, बट वो चीज वो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आपको उसके फाइनेंशियल्स पे नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप उसके फाइनेंशियल्स पे देखोगे तो वहां थोड़ा लिखा होएगा ये कि ये वेरी फेमस स्टोर, फाइनेंशियल्स पे ये चीज नहीं लिखी जाती, क्वालिटी फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, राइट? बट वो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, राइट? अगर हम किसी के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलैरिटी, हमारी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्लियर? तो इग्नोर नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स मीन्स क्वालिटिव एलिमेंट लाइक एम्प्लॉय मोरल, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी आर नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर? सो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है। इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, लाइक एम्प्लॉय हार्ड वर्क या मोरल, या आपकी रेपुटेशन या पॉपुलैरिटी। क्लियर? या पॉपुलैरिटी हो गई, या लॉयल्टी हो गई, जो भी है, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स हैं, आपकी अच्छी डीलिंग आप कस्टमर के साथ कैसे डील कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल्स पे इग्नोर की जाती हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग रन सक्सेस। दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिविटी इन एस्टिमेट्स। थर्ड इज subjectivity in estimates। अब मान लो आपने कोई अकाउंटेंट हायर किया,
तो वो अकाउंटेंट की एक जजमेंट है कि वो आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है या कौन सा जजमेंट यूज कर रहा है। क्लियर? लाइक एस्टिमेट, लाइक किसी की जजमेंट बेटर हो सकती है, किसी की पुअर हो सकती है, कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई कैसे सोचता है। लाइक एसेट्स जो होती हैं हमारी एसेट्स, आप मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एसेट वर्ड यूज करता, लाइक मशीनरी मेरी खरीदी हुई है, तो मशीनरी जो है बड़ा खर्चा होता है। मान लो 50,000 की मशीनरी आई, उस पर डेप्रिसिएशन लगना होता है। अब आप पूछोगे डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह के सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि एक वो खर्चे होते हैं जो आपने खर्चे खर्च किए और इमीडिएटली आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए। मान लो कोई मैंने स्टेशनरी का सामान खरीदा 500 का और साथ के साथ 500 का खर्चा किया और रिकॉर्ड कर दिया। बट एसेट्स वो होते हैं, वो हमारे रिसोर्स होते हैं वो हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है जिन पे आपने एक मोटा खर्चा किया और उसका बेनिफिट आपको ओवर द इयर्स मिलेगा, फ्यूचर पे बेनिफिट। अब मशीनरी मैंने खरीदी है, राइट, तो उसका जो बेनिफिट है मुझे 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा। अब मैंने ये पेन खरीदा तो इसका बेनिफिट मुझे 10-15 दिन पे मिलेगा, उसके बाद आई हैव टू परचेज अ न्यू वन, दिस इज राइट। बट मशीनरी मैंने 50,000 की अगर खरीदी है तो उसका जो बेनिफिट है मुझे ओवर द ईयर्स मिलेगा, राइट। तो उस पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मीन्स उस पे हम एक घिसावट, हिंदी वर्ड है घिसावट। डेप्रिसिएशन मीन्स कि आपकी मशीनरी की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर? वो डेप्रिसिएशन है, मतलब वो आप 50,000 का आप ऐसे कह लो कि 10 सालों में उसका आपको खर्चा मिलेगा, उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। या 20 सालों में आपको 50,000 का जो खर्चा है, 50,000 वो एक बार में आप क्लेम नहीं करोगे प्रॉफिट और लॉस में, वो आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट में, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई मेथड्स होते हैं। तो कोई बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई बोलता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, करेक्ट। इसी तरह स्टॉक को वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। सो ऑल दीज एस्टिमेट्स आर, जितने भी ये डिसीजंस लेने हैं कि मैंने कौन सा मेथड यूज करना है, दैट इज क्लियरली डिपेंडेड ऑन द पर्सनल जजमेंट। क्लियर? इफ आई एम द अकाउंटेंट, मैंने सोचा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, बट समवन एल्स तो की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, या वो बंदा बोल रहा है कि फीफो मेथड यूज करते हैं, वो बोलता नहीं मैं तो लीफो यूज करूं इसमें तो हर एक की जजमेंट अलग है। क्लियर? या कोई और डिसीजन लेना है, मान लो अकाउंटिंग में कोई डिसीजन लेना है तो वो अपनी जजमेंट की, मान लो किसी से पैसा आना, तो मुझे लगता है यार इसने पैसा नहीं देना, दूसरा बंदा बोल रहा नहीं यार इससे पैसा मिल सकता है मुझे। तो सारे जो डिसीजंस होते हैं ये जजमेंटल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, किसी की पर्सनल चॉइस पे, राइट। सो दीज आर कॉल्ड सब्जेक्टिविटी एंड एस्टिमेट्स। इसमें भी क्या लिखा है, मैनी अकाउंटिंग फिगर्स रिलाई ऑन एस्टिमेट्स, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, bad debt, inventory valuation. These are based on judgment and can vary between accountants, reducing objectivity. Clear? So ये accountant to accounting, person to person vary करते हैं। The fourth one is limited scope. Limited scope just is like non-monetary factors. Only financial transactions are recorded. जैसे मैंने बोला आपको कि only financials transactions are recording. Financial means related to business related transactions are recorded, but social, environmental, ethical impacts of business decisions are excluded. लिमिटेड स्कोप है कि सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, दैट इज गुड पॉइंट, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, क्लियर? जस्ट लाइक नॉन मॉनिटरी की ये चीजें सारी इम्पैक्ट कर रही हैं। लाइक कंपटीशन बिजनेस कंपटीशन जो है वो अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बिजनेस कंपटीशन क्या है, या
अपना कह सकते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, लाइक तो वो चीजों को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर। लिमिटेड स्कोर में काउंटिंग ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर ली। अब फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एक अच्छी ग्रोथ में चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो मान लो कोई ऐसे एनवायरमेंट चेंजेस आ जाते हैं, मान लो बहुत ज्यादा रेनी सीजन आ गया, तो उससे आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। क्लियर। या सोशल एनवायरनमेंट जो हमारे, मान लो कोई ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई हम और हमारे शहर में जिसमें या कुछ में, जिसके कारण शायद थोड़ी देर के लिए बिजनेस बंद हो गया या थोड़ा काम थम हो गया, तो दैट इज द लिमिटेड स्कोप। तो वो चीजें इस अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं की जाती और ना ही उनका पता चलता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। ये सिर्फ इतना इन जो ये लिमिटेशंस है ना, यू डोंट नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। जस्ट आपके एक नॉलेज पर्पज के लिए है कि इफ समवन आस्क यू कि व्हाट आर द लिमिटेशन, यू मस्ट नो द लिमिटेशंस। इसको इतना सीरियसली नहीं लेना कि ये है वो है। आपका अकाउंटिंग इज वेरी बेनिफिशियल, आई एम रिपीटिंग, इज जस्ट अ लिमिटेशन, आपको जस्ट बताने के लिए कि इसमें ये है। ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन, the fifth one, possibility of manipulation। Sixth is does not reflect real data। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड, lack of future orientation। does not ensure financial health। सो टोटल 10 जो है लिमिटेशंस हैं इसमें। क्लियर। तो हमने 4 कवर कर लिए, बाकी की रेस्ट ये है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन, क्लियरली मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन क्या है कि मान लो मेरे बिजनेस में की बहुत ज्यादा इनकम आ रही है, मेरा एक बिजनेस है और वो उसने बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर बहुत सारा पैसा कमाया। अब बहुत सारा पैसा कमाया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। बट ओनर बोलता है अकाउंटेंट को कि लेट्स डू समथिंग कि हमारा जो प्रॉफिट है कम दिखे। क्लियर। फेक एक्सपेंसेस डाल दिए, कोई मान लो फेक एक्सपेंसेस डाल दिए जो हुए ही नहीं। क्लियर। या इनकम कम दिखा दी, या मतलब ऐसी चीजें करनी जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो सके, राइट। या लॉस को प्रॉफिट में भी समटाइम्स कन्वर्ट करते हैं। मान लो कि हम बैंक से लोन लेना है तो उसमें बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आफ्टर सीइंग द लॉसेस बैंक विल नॉट इशू द लोन, राइट। नहीं करेगा लोन। क्लियर। तो लॉस को प्रॉफिट में दिखाना या प्रॉफिट को कम दिखाना, तो ये सारी चीजें बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। क्लियर। फेक खर्चे डाल देना, ये सारी चीजें करनी। इवन में इसमें प्रोफेशनल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं समटाइम्स, राइट। तो पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशन की कि हम कम टैक्स दें, कम काम, मतलब आपने थ्रू आउट द ईयर बिजनेस तो बहुत करा, बट आप एंड द ईयर बोल रहे हैं कि हमने टैक्स कम पे करना, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। इसमें भी ये लिखा है क्रिएटिव अकाउंटिंग
क्रिएटिव अकाउंटिंग, जो आप खुद क्रिएटिव अकाउंटिंग मीन्स आपने अकाउंटिंग तो कर रहे हो बट उसमें आप क्रिएटिव अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपने एंड पे कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग कैन डिस्टॉर्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। विंडो ड्रेसिंग उसे बोलते हैं। दिस कैन मिसलीड इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड इवन बिजनेस ओनर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल डाटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब रियल डाटा मीन्स अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मान लो हम बनाते हैं, मान लो समटाइम्स, वैसे तो हम ईयरली रिपोर्ट्स बनाते हैं फाइनेंशियल साल के एंड में, या क्वार्टरली, कोई बंदा क्वार्टरली रिपोर्टिंग साल बाद ही होएगी, बट वैसे ही समटाइम्स कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ कैसे चल रही है ये चेक करने के लिए हम मंथली डाटा बनवा सकते हैं, मंथली डाटा प्रोवाइड हो सकता है, या क्वार्टरली डाटा हो सकता है, या 6 मंथली हो सकता है। तो ये सारी रिपोर्टें अवेलेबल है। बट अगर मेरे को 5 दिन का 5 दिन के फाइनेंशियल चाहिए, 5 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो वो चीज आज के सॉफ्टवेयर में तो पॉसिबल है। क्लियर। बट पहले ये पॉसिबल नहीं होता था कि 5 दिन की पोजीशन चेक करें। जब अकाउंट्स मैनुअली लिखा जाता था तो मैनुअली सारे रजिस्टर यूज किए जाते थे, तो एक टाइम के बाद ही उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, लाइक मंथली, 6 क्वार्टरली या ईयरली। ईयरली तो डेफिनेटली बनेगी, बट समटाइम्स हमें ओनर्स को रिक्वायरमेंट होती है दैट वी नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द 15 डेज, तो वहां वो चीज पॉसिबल नहीं थी। बट आज के जो सॉफ्टवेयर हैं दैट दे प्रोवाइड रिपोर्ट इवन आफ्टर 2 डेज। अगर आज रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। बट सेकंड थिंग, इसमें डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल डाटा, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि लाइक मैंने कोई सेल रिकॉर्ड की, मैंने सेल करी, काफी सारी सेल्स करी, अब अकाउंटेंट बिल लेते जा रहा है, लेता जा रहा है। मान लो सुबह मैंने सेल करी 11 बजे, अकाउंटेंट शाम को रिकॉर्ड करेगा। मैं अकाउंटेंट बोल रहा है कि मैं तो इकट्ठा सारी चीज रिकॉर्ड करूंगा, तो वो थोड़ा मिसलीड हो जाता है। अगर मैं मान लो 11 बजे की सेल हुई, शाम को मैं डाटा रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इवन तो वो चीज होती है। बट ये फिर जैसे मैंने पहले भी बोला है कि डोंट टेक इट्स वेरी सीरियस इन लिमिटेशंस को, बिकॉज इन द मॉडर्न टाइम्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर। सो डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल डाटा कि जो पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था कि मंथली या वीकली रिपोर्ट्स बना के दे दी जाए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही होता था जब वो रिपोर्ट्स बनाई जाती थी, बिकॉज इससे अकाउंटेंट की जो टीम थी या मैनेजमेंट थी वो भी परेशान होते थे कि इतने कम टाइम में बार बार रिपोर्टें बनाना काफी मुश्किल हो जाता था। क्लियर। बट इन द मॉडर्न टाइम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप इवन आप एक दिन की रिपोर्ट भी निकालो वो भी सॉफ्टवेयर से निकाल देते हैं। क्लियर। तो ये डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल डाटा, इसका मतलब ये है। या जैसे मैंने सेल का बताया कि मान लो आपका अकाउंटेंट छुट्टी पे है, मान लो आपका अकाउंटेंट 3 दिन की छुट्टी पे चला गया, उस 3 दिन में आपके पास बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठे हो गए, वो 3 दिन का डाटा वो मान लो 3 दिन में मुझे कोई 3 दिन में मान लो कोई रिपोर्ट चाहिए ओनर्स को, तो वो इमीडिएटली सॉफ्टवेयर से निकालेगा, बट उसमें वो एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे। तो ये एक फर्क है। तो इसमें टाइम गैप का फर्क हो सकता है। रियल टाइम मीन्स डाटा मीन्स टाइम गैप। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स इज जस्ट लाइक टू आपकी इनकम को कम करने के लिए, प्रॉफिट कम दिखाने के लिए इनकम को कम दिखाना, या एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने, या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, वही इज जस्ट सिमिलर टू पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। जैसे ये इसके साथ सिमिलर था, लिमिटेड स्कोप के साथ। क्लियर। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल मीन्स अकाउंटेंट्स ऑफन अंडरस्टेट एसेट्स, एसेट्स को कम वैल्यू पे दिखाते हैं, इनकम को भी कम वैल्यू पे दिखाते हैं ताकि कम प्रॉफिट दिखा सकें, या while cautious this can lead to undervaluation of a business। क्लियर। वैल्यूएशन कम दिखाने के लिए या ज्यादा दिखाने के लिए, तो ये सारी चीजें जैसे मैंने पॉसिबिलिटी मैनिपुलेशन में बोला, जस्ट लाइक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है कि ये वो चीज पे पॉसिबली डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड। क्लियर। पर जो इस पे बेस्ड था, इस पे based on personal judgment। Different accounting method means
You are using, there are multiple methods to value the closing stock like LIFO, FIFO. There are multiple methods to depreciate the assets like we did not value, straight line method. ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हैं, कोई एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है कि जिसको यूज कर सके। अगर मेरी फर्म, मेरा बिजनेस एबीसी लिमिटेड यूज कर रहा है लिफो, यूज कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई दूसरा बिजनेस यूज कर रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्लियर। तो वो चीज है कि अलग अलग मेथड है, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज कर रहा है। लैक ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, लैक ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन मीन्स कि अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है, इफ आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड आई हैव टू मेक ए डिसीजन फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, देन आई नीड टू लुक द पास्ट फिगर्स। पास्ट फिगर्स मतलब मान लो इस ये साल चल रहा है, साल के एंड में मैं देखूंगा कि मुझे इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा। मेरे पास अकाउंटिंग कोई मुझे ऐसी रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती जो ये बता सके कि आपकी फ्यूचर प्रोडिक्शन कितनी है। एक एस्टिमेट हो सकता है बट एग्जैक्ट नहीं। तो जो भी डिसीजंस हैं, अकाउंटिंग फोकसेस ऑन पास्ट परफॉर्मेंस नॉट फ्यूचर प्रोजेक्शन। दिस लिमिट इज यूजफुलनेस फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्लियर। कि अकाउंटिंग की जो एस्टिमेट्स है वो पास्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होती हैं। द नेक्स्ट इज does not ensure financial health. Last is does not ensure financial health. A business may appear profitable on paper but still face a liquidity issue. Clear? अब देखो, does not ensure financial health. मैंने पूरे साल में बहुत सारा पैसा कमाया, क्लियर, बहुत सारा पैसा मेरे पास आया और मुझे मेरे एंड में, साल के एंड में मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 करोड़ का। और वो 1 करोड़ मेरी बुक्स में, मतलब मेरी बुक्स मतलब जो मेरे अकाउंटेंट जो मेंटेन सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखा हुआ है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में, मेरे बैलेंस शीट पे, उसको बुक्स बोलते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोल लो, उस पे मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। बट इन द एंड मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, मैं तो खाली हूं। क्यों? क्योंकि मैं पैसा निकालता रहा और वो सारा पर्सनल यूज में होता रहा। या इसमें आप ये भी एड कर सकते हो कि जैसे मैनिपुलेशन करी है प्रॉफिट, इसमें तो आपका, इसमें आप बिजनेस में यू आर शोइंग आवर बिजनेस इज इन लॉस बट एक्चुअली यू आर वेरी प्रॉफिटेबल। देखने में आप बहुत प्रॉफिटेबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आईपीएल होता है, राइट। तो आईपीएल में कोई एक टीम, फॉर एग्जांपल किंग्स 11 पंजाब ले लेते हैं, वो इट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 में शुरू हुआ था आईपीएल, तो ऑलमोस्ट 18 सीजन हो चुके हैं, राइट। तो इसमें अभी तक भी पंजाब जीता नहीं है, और इवन 1-2 टाइम, मतलब 1 2 3 4 टाइम्स ही फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचा होगा। बट इट डज नॉट मीन कि किंग्स 11 जो टीम है वो घाटे में जा रही है, वो बहुत प्रॉफिट में जा रही है, वो उनका प्रॉफिट बहुत हो रहा है, बट वो जीत नहीं रही। वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो मैं अपनी बुक्स में लॉस दिखा रहा हूं बट मैं हूं थोड़ा प्रॉफिटेबल में ही, ठीक है। या मेरा प्रॉफिट तो बन रहा है 1 करोड़ बट मैं बुक्स में दिखाया है 20 लाख। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल हेल्थ डज नॉट, फाइनेंशियल है आपकी दिखाती नहीं है। तो ये आप वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आप डे बाय डे जैसे जैसे अकाउंटिंग में और ज्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे तो आपको पता चलती जाएगी। तो ये लिमिटेशन, और यू हैव टू फॉलो द accounting rules, accounting everything, right? But don't take this as seriously because once you involve in accounting, these things normally happen. Practically जब आप इन्वॉल्व हो गए अकाउंटिंग में, प्रैक्टिकली मीन्स व्हेन जब आप स्टडी को छोड़ के जब एक्चुअल में आप उस फील्ड में जाओगे, बिजनेस फील्ड में, और देखोगे कैसे चीजें होती हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियर। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई थिंक आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें इतनी लिमिटेशंस नहीं है ना, बट आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द लिमिटेशंस। सो दिस इज ऑल आई थिंक फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। थ्योरी होएगी बट वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी होएगी। ये टोटली थ्योरी थी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आया। अब आपको प्रैक्टिकल में हम वी विल ट्राई टू कवर in the next video we will cover the terms of accounting like what is asset liabilities, vouchers क्या होते हैं, कैश बुक क्या होती है, लेजर क्या होते हैं,
तो जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइज, उन सब चीजों को ध्यान में रखना. नियर अबाउट 7 videos we have covered so far from the theory part. Clear? So after watching all 7 videos, then you will be able to understand the 8th video, right? So I'm repeating again. So to all the students who still not watched all the videos, please watch from the beginning. अगर आप इस एक मूवी की तरह अगर आप हर लेक्चर्स को, हर वीडियो को देखोगे, तो आपको आने वाले जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंस है तब आपको समझ आएगी, राइट? अगर आपने बीच बीच में समझ करना है, दैट्स योर चॉइस, बट माय एडवाइस इज टू वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम द बिगिनिंग. अब अकाउंटिंग पार्ट आपको पता चल गया. अब आपके अकाउंटिंग, आपके माइंड भी पूरी तरह से एक तरह के इन्वॉल्व हो चुकी है. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल. और ये जो शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, वो तो सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं, या जो इवन जो मिडिल एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं. बट जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है कि यार इतना कौन सुने, राइट? सो मेरा फोकस है, माय फोकस कि मेरे लिए इवन ऑल द स्टूडेंट्स आर सेम. मैं किसी को ये नहीं, अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, इवन इफ यू आर स्टडिंग द अकाउंटिंग, so all the students are equal and everybody has equal chance to grow further. Then choices are yours ki where you want to grow, how you want to grow. Clear? So thank you guys. That's it from the limitations of accounting part. Thank you, and once again.